Okay, ma'am. Thank you. Okay, in our last lecture, we were discussing about the job costing and contract costing. Today, we are going to continue with the lecture of contract costing. As you all can see on the screen, the format of contract costing. You have to prepare the accounts. The format is contract account for the year ending, whatever the time period we are preparing for the accounts, and you have the columns particular amount, debit credit side particular amount. On the debit side, we have to show all the expenses where we are supposed to show the direct material, direct wages or plant cost in case we have the plant cost, all the indirect expenses in the category of the overheads. On the credit side, we have to show the uh, work which has been certified. I told you in our last lecture about the work certified and uncertified. Work certified is basically whatever work of your contract has been finished and it has been approved by the surveyor or the concerned person, and he certifies it by giving some certificate or report, then that will be the work certified. And whatever work which has been done or which has been finished but it is yet to be certified, it is not certified yet by the surveyor, then that would be the work uncertified. And we have to show the cost of work certified as well as cost of work uncertified separately in contract account, just because when we are talking of the contract price at which the contractor is performing his duties or doing the trying to finish the project or contract, he'll be getting the payment on the basis of the work which has been certified by the surveyor. We have to show the cost of work certified as well as the cost of work uncertified on credit side of the contract account, like by work in progress, work certified, and cost of work uncertified. And we write it under the heading of by work in progress because the whole contract is not yet been finished. It is गोइंग ऑन, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, तो वी हैव टू शो इट इन द हेड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, and separately you show the work certified and cost of work uncertified. Then in case some material which has been purchased for a particular contract जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, अगर उसमें कोई मटेरियल की डिस्ट्रक्शन या डैमेज की वजह से हमें कोई नुकसान होता है तो उसकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल डैमेज्ड. And in case you have the raw material or any equipment in, just a minute. Okay, in case you have any material which is there in the stock which will be used in that particular contract, or in case you have any plant or equipment, then the closing stock of the material will be having at the end, or the plant you have after charging depreciation, that has to be shown in the um, your contract account. तो जो हमने इक्विपमेंट या प्लांट परचेज किया था, it has to be shown on the debit side at the cost price, and whatever amount is being left after charging depreciation. तो इसका मतलब जो at the end of time period whatever is the book value of the plant or equipment is there with us, it has to be shown on the credit side. So basically what actually is happening, बजाय इसके कि हमने उस प्लांट का डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज़ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस की तरह लॉस की तरह हम पीएलएन में ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ना दिखाकर हमने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो प्लान था डेबिट साइड पे उसका कॉस्ट प्राइस दिखाया और क्रेडिट साइड पे उसका रिटन डाउन वैल्यू पे दिखाया. इसका मतलब क्या है, नेट इम्पैक्ट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ही उस पर आएगा, एंड इन द बैलेंसिंग फिगर यू विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which is to be transferred to profit and loss account or reserve account.
This is the simple format of your contract account, and then you have to prepare the balance sheet. बैलेंस शीट में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो भी फिगर आई है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, दैट विल बी ऑन द लायबिलिटी साइड. जो पहले के बैलेंस होंगे दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, टू विच यू हैव टू ऐड और मेक द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑन ऑल लॉस इनकर्ड फॉर द ईयर. और उसके अलावा में कोई एबनॉर्मल गेन है वो हम ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस है वो सब्ट्रैक्ट करके उसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे प्रॉफिट की फिगर में से. And in case you have any expenses which are outstanding, they are the liabilities at the end to be shown on the liability side, and all the assets on the asset side, closing balances जो written down balances आपके assets के हैं. Along with that you have to show the work in progress, where we have to show the amount of work certified, because the work which has been certified, then that becomes your asset. कि अगर मान लीजिए मैंने 8 लाख रुपए का काम करा, उसमें से 6 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाई हो गया है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ही इज़ इट्स हिज एसेट, वो 6 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टी से डिमांड कर सकता है. उसके लिए वो एसेट बन जाता है चाहे मिला या नहीं मिला. अगर नहीं मिला है तो भी उसके लिए एसेट हो गया कि उसको मिलेगा. दैट इज़ बेसिकली द इनकम विच हैज़ बीन accrued or earned by him though not received. So we have to show the amount of work certified, and we have to add the work uncertified, क्योंकि अगर वो सर्टिफिकेशन की वजह से सिर्फ पेमेंट अटकी हुई है या सर्टिफाइड होने के बाद उसकी पेमेंट रिलीज़ होगी, मगर है तो वो हमारा एसेट क्योंकि हम उतना काम कर चुके हैं. And out of these two figures we have to make the adjustments in case you have received some cash from the contractee from the work certified. Like अगर 8 लाख का आपने टोटल में काम किया, out of that 6 lakh rupees of the work has been certified, and remaining 2 lakh rupees का जो काम था वो अभी अनसर्टिफाइड था. 6 लाख रुपये वर्क सर्टिफाइड में आ जाएंगे, वर्क अनसर्टिफाइड में 2 लाख रुपीज़ आ जाएंगे. अगर उसमें से आपने 2 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव कर लिए हैं तो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वर्क सर्टिफाइड, और उसमें से उसकी एडजस्टमेंट्स करके हमें शो करना है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, because in case we are talking of the contract costing, that means we are talking of the long time duration for the completion of the contract. Basically, till the time the contract is totally finished, you cannot actually calculate the amount of profit, but on the basis of incomplete contract also we can calculate the profit till the particular time. However, there are no hard and fast rules in the calculation of profit in terms of the incomplete contracts. However, though you have some general rules which are followed by the companies or the organizations or the contractors to calculate the profit on incomplete contracts. Now, the first rule says that the profit should be considered only in respect of work certified, and the work uncertified should be valued at cost. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम वर्क सर्टिफाइड की बात कर रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम ऐड कर सकते हैं, करते हैं. लेकिन जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है, क्योंकि अभी सर्टिफिकेशन नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वो सर्टिफाइड नहीं हो, उसमें कहीं वो कमी निकाल दें, तो हम उसमें एक्चुअली प्रॉफिट का पार्ट ऐड नहीं कर सकते. तो इसीलिए जब भी हम अकाउंट्स में एंट्रीज करेंगे तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ दैट एवरी टाइम वी आर टेकिंग the entry for work certified, profit can be considered, and in case of uncertified work it has to be valued only at the cost. The second rule says that if the loss is arrived on incomplete contract, the entire loss has to be adjusted to or transferred to profit and loss account. अगर आपको उसमें incomplete क्योंकि है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपको एक्चुअल पता नहीं चलेगा कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल में प्रॉफिट हुआ या लॉस इनकर किया है. बट टिल द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट एंड इन केस यू फाइंड एनी काइंड ऑफ लॉस, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल that let's say the contract you have taken is for 3 years. The time for finishing the whole contract, completing the whole building or construction work will take 3 years. And for first year if you are preparing the accounts, then in initial stages
the revenue will be either zero, or it may be some amount you may earn as revenue, or you can say the work certified, जिस पे हम profit add कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं. Otherwise you will be in initial stages incurring the huge amount of investment or cost or expenses to continue or to perform the work or doing the different kind of things in the completion of the contract. तो शुरू के सालों में, शुरू के टाइम पीरियड में हमारे एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे. एंड इन दोज टाइम्स इफ आई प्रिपेयर द अकाउंट्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अभी मेरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इनिशियल स्टेजेस पर है और मैं अकाउंट्स बना रही हूँ, एक्सपेंसेस मेरे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू मुझे कुछ है ही नहीं. क्योंकि जो पेमेंट भी अगर आएगी तो पेमेंट भी तभी आएगी जब मैं कोई काम कर दूँगी, काम करूँगी, काम करने के बाद वो सर्टिफाई होगा, उसके बाद शायद मुझे पेमेंट मिलेगी. तो और वो भी ज़रूरी नहीं है कि जितना काम किया, जितना काम सर्टिफाई हो गया है, उतनी पेमेंट मिले. इट मे बी पॉसिबल कितनी मिले, और हो सकता है कि कितनी ना भी मिले. तो इन इनिशियल स्टेजेस यू मे फाइंड as per the accounts or as per the contract accounting, you may find the figure of loss. Then the entire loss should be transferred to profit and loss account. Now the third rule says that if the work certified is less than 25% of the contract price. Now these points are very important. You please try to understand these points and try to remember, क्योंकि contract costing का एक chapter बहुत important है, and you'll be having one question out of this. So make sure that you are clear with the whole concept and you remember the concept. Now the third rule says that if the वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. इसका मतलब अगर आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया है उसका 25% से कम काम किया या काम करा, लेकिन जो वर्क सर्टिफाई हुआ वो सिर्फ 25% से कम है, 1/4 से भी कम है, देन in any case no amount of profit is to be transferred to profit and loss account. The entire amount, in case as per your books you come to know कि आपकी बुक्स के हिसाब से आपकी प्रॉफिट की फिगर है, it is not to be transferred to P&L account. It has to be kept as a reserve for next account or next further time periods. शुरू में अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 25% का अमाउंट, 25% of the contract price से अगर हमारा work certified कम है, that means if work certified is less than 1/4 of the contract price, the total amount of profit is to be kept as the reserve and it is not to be transferred in P&L account as the actual profit. Now in case the work certified is 25% or more but less than 50% of the contract price, then what you are supposed to do, then the 1/3 of the profit reduced on cash basis should be transferred to P&L account. अब इसको हमें कैसे करना होता है, इसके लिए you have to apply this formula. Whatever the work which has been certified, the payment will be received accordingly. Then you have to calculate the amount which is to be transferred to profit and loss account in the form of profit. It will be 1/3 of the notional profit into cash received divided by work certified. तो आपको proportionate एक calculate करना है. If the work certified is ranging between 25% to 50% of the contract price, तो 25% से 50% की रेंज में अगर वर्क सर्टिफाइड है तो PLN में कितना ट्रांसफ़र होगा वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. देन नोशनल प्रॉफिट जो हमारा PLN के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है उसका 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड इन पोर्शन ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, कि हमें कितना कैश वर्क सर्टिफाइड के प्रोपोर्शन में मिला है. फॉर एग्जाम्पल इफ लेट्स से वर्क सर्टिफाइड इज 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा और उसके बेसिस पर 30% का ज़रूरी नहीं ना कि आपको 30% ही मिला है पूरा का पूरा. 30% वर्क सर्टिफाई हुआ है, उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टी ने आपको कितना पैसा दिया है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से 1/3 का नोशनल प्रॉफिट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू P&L account and the rest amount has to be taken into the reserve. Now the third situation may be there where the work certified will be more than 50%. It will be 50 or more than the contract price. Then what you have to do, the same formula, but instead of 1/3
of notional profit into cash received and proportion of work certified, you have to transfer 2/3 of the amount to the profit and loss account, and the rest will be taken in the reserves. I hope ये आप लोगों को क्लियर है. अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड so that I can allow you to unmute yourself and you can ask the questions then. Now the next rule says that if the contract is near, just give me a minute please, I'll just join you back. Okay, sorry for the break. Uh, um, Ikmeet Kaur, you want to ask something? Then please unmute yourself and ask your query. Yes, ma'am. Can you please explain the treatment of depreciation in plant again? In contract account? Yes, ma'am. Okay, I'll explain that. Okay. When we prepare the contract account, basically the balancing figure which we will be getting will be the amount of profit we will be earning, or in case of initial stages then you may find the loss figure in initial stages. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अगर कॉस्ट इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा हैं और उसके बजाय आपके जो रेवेन्यू या जो आपकी अर्निंग्स हैं वो उतनी नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे, आप काम करा के सर्टिफाई नहीं कराओगे, आपको कॉन्ट्रैक्टी पैसे नहीं देगा. तो you have to perform your duties, you have to finish work, you have to get it certified, then only you will be getting the payment. Till the time you are getting any kind of payment, उस टाइम तक आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं है. क्यों? क्योंकि आप सारे एक्सपेंसेस कर रहे हो. तो एक चीज़ तो आपको जो ध्यान रखनी है कि इनिशियल स्टेजेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट आप अकाउंट बना रहे हैं देन यू मे फाइंड कि आपको नुकसान हो रहा है, बिकॉज जो प्रॉफिट की फिगर आपको मिलेगी एक्चुअली में वो लास्ट में मिलेगी व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग गेटिंग द पेमेंट आफ्टर गेटिंग द वर्क सर्टिफाइड एंड आफ्टर रिसीविंग कैश फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी. Now, when we have to show, when we are calculating the profit figure or loss figure during the particular year, then we have to show all the expenses and losses on the debit side. तो अगर हम फाइनल अकाउंट्स की मैं आपसे बात करूं, जो हम फाइनल अकाउंट्स में पी एल एंड अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करते थे मटेरियल लेबर के साथ में, and all indirect expenses are to be shown in the debit side of P&L account, which includes one of the item which is depreciation. Now in contract accounting, what we have to do, we have the focus on three things, four things basically you can say. One is material, which I'm talking of the direct material, direct wages, and then you have the overheads
means all indirect expenses we are incurring to perform our duties or to finish off that particular contract. Now, coming to the concept of depreciation, instead of showing the depreciation directly, what we are doing is, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हम उसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो कैशलेस ट्रांजेक्शन है। उसकी जगह हमने क्या किया है, प्लांट को जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो दो सिचुएशन हमारे पास हो सकती हैं। एक कि वो प्लांट हमने ख़रीदा है और हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर रहे हैं। एक हो सकता है कि हमने उसको उधार पे लिया है और फिर हम उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उस प्लांट को हम इक्विपमेंट को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर हमने प्लांट को हायर किया है, उधार पर लिया है, तब हम क्या करेंगे, जो हम उधार पर लेकर आ रहे हैं तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, हायर चार्जेस देने पड़ेंगे। In case the plant or equipment which is used in the contract work and it has been taken on the hire purchase system or it has been taken on rent, then the amount which we are paying as hire charges or rent, you can say, then only that amount has to be shown on the debit side. This I told you in our last class. अगर मैंने उधार पर कहीं से हायर परचेज सिस्टम पे रेंट पे लिया है, हायर किया हुआ है, तो सिर्फ उसके हायर चार्जेस मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे। अगर वो प्लांट मैंने परचेज किया है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, तब हम बजाय डेप्रिसिएशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी कॉस्ट प्राइस है एट विच द प्लांट हैज़ बीन acquired for this particular contract, then the cost price of that particular plant or equipment has to be on the debit side of the contract account, and after charging depreciation the book value at the end of the year has to be shown on the credit side. तो basically what I am doing is कि मैं अपने asset की book cost price starting में और फिर उसकी लास्ट में एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी बुक वैल्यू में शो कर रही हूँ। तो व्हाट आई वाज सेइंग टू यू और ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि इंस्टेड ऑफ शोइंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम शोइंग माय asset in the contract account which has been taken on hire purchase system or which has been purchased for the particular contract, तो उसकी कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम एसेट को यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे हम बाकी जैसे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, रेजोल्यूशन हम पढ़ते थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, उसमें एसेट्स को हम डेबिट साइड पे दिखाते थे और फिर उनकी सेल दिखा देते थे ताकि कैश रियलाइज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन ना दिखा के हमारा जो एसेट है, प्लांट या इक्विपमेंट, उसको हमने जिस पे भी परचेज किया है वो हमने एसेट की बुक कॉस्ट प्राइस दिखाई डेबिट साइड पे, और प्लांट की जो बुक वैल्यू है वो हमने दिखा दी एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड क्रेडिट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट के। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या आएगी, मान लीजिए मैंने एक प्लांट परचेज किया, कॉस्ट प्राइस मैंने डेबिट साइड पे दिखा दी। नाउ वाइल यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्लांट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी पॉसिबल दैट द पार्ट ऑफ द प्लांट इज डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, ख़राब हो गया, टूट गया, डैमेज हो गया, गुम गया कोई पार्ट, तो उसकी कोई ना कोई तो कीमत होगी, कोई ना कोई कॉस्ट होगी। वो हम क्या करेंगे, क्योंकि उस प्लांट की वो कॉस्ट कम हो रही है डैमेज होने की वजह से, डिस्ट्रॉय होने की वजह से, तो जो भी उसकी कॉस्ट होगी लॉस्ट या डैमेज्ड पार्ट की उस प्लांट के, द कॉस्ट ऑफ सच पार्ट विल इट हैज़ टू बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इज we are showing the plant on at the cost price, and we are showing the plant at the end of the year at the written down value or the book value of the plant, and in case some damage is there during that particular year, then the damage cost has to be shown on the credit side of the contract account.
Now what happens is, if the plant is, let's say, damaged or lost after using it for the current time period, तब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसकी बुक वैल्यू दिखा रहे हैं। आपके पास 3 तरीके की एंट्रीज हो सकती हैं, प्लांट की कॉस्ट प्राइस, प्लांट की रिटन डाउन वैल्यू, और इन केस इट हैज़ बीन डैमेज्ड और डिस्ट्रक्टेड, देन द लॉस यू हैव इनकर्ड फॉर पर्टिकुलर डैमेज और द लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट, इट हैज़ टू बी ऑन द क्रेडिट साइड। आई होप नाउ इट्स क्लियर। And in case Yes, ma'am. you have abnormal loss, the normal उसमें it will be giving you the impact on the total amount of profit or loss we are calculating। तो मैंने आपको जो स्टेटमेंट दी थी कि एक्चुअली में अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे, मेरे पास अगर मान लीजिए कोई लॉस नहीं है, मैं प्लांट को डेबिट साइड पे, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से बता रही हूँ, कॉस्ट प्राइस पे दिखाया, क्रेडिट साइड मैंने क्या किया, रिटन डाउन पे दिखाया, तो बजाय डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का दिखाने के, इम्पैक्ट तो उतना ही आया ना। मैं अगर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से अगर बैलेंस चेक करूँ, तो एक्चुअली इनडायरेक्ट तरीके से मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाया। बट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है, हम डेप्रिसिएशन ना दिखाकर व्हाट वी आर एक्चुअली शोइंग आर इक्विपमेंट वी आर यूजिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। I hope I made the concept clear to you now. And in case you still have query or someone else, then you can ask me. Now moving further, we were discussing these rules. 5 rules we have discussed. Now coming to the rule. Sixth rule says that when we are at at a point where the contract is supposed to be completed in near future, जल्दी ख़त्म होने वाला है, sorry, then you can calculate the estimated profit for the whole contract, and then the profit which is to be transferred to profit and loss account is calculated on the basis of the formula where we have the estimated profit into work certified upon contract price into cash receipt divided by work certified। तो अब आपको यहाँ पर 1/3 या 2/3 नहीं लेना है, हमने क्या किया है, वो कैश रिसीव्ड ऑन द बेस इन द पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड के साथ में, अब आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से भी कंपेयर किया है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड हाउ मच इज़ द परसेंटेज ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी, जिसके बेसिस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, एंड द रेस्ट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। आई होप दीज 6 points are clear to you now। Okay, I'll just explain this also to you, then we will come directly to the question. You may have a situation of cost plus contract in contract accounting. Contract plus contract is basically a contract where the value of the contract is ascertained by adding a certain percentage of profit in the cost। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, कॉस्ट प्लस मीन्स एज द नेम सजेस्ट, डोंट मग इट अप, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, नाम से आपको सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉस्ट प्लस है। कॉस्ट प्लस का मतलब ये है, कॉस्ट प्लस मीन्स हम कॉस्ट में क्या चीज़ ऐड करते हैं। इफ आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, आई एम देयर to perform the duties, I'm there to finish the contract, and the motive I'm working is to earn profit। So cost plus means the profit figure or the percentage of profit। So what actually I'm doing is, whenever I'm going into a contract, whatever price I'll be quoting, the cost plus some percentage of profit will be added by me, and then I'll quote the value of the contract। तो basically what I'm saying is कि contract price में जो generally होता ही है, आप हमेशा ये कहते हो कि cost की बजाय हर कोई पैसा कमाना चाहता है, profit earn करना चाहता है, तो what actually they are doing is, I am a contractor, मैंने सब calculations calculate की, estimation किया किसी काम को करने के लिए, और उसमें अपना कोई प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया ऑलरेडी। बाद में हो सकता है कुछ और भी मैं अर्न कर लूँ प्रॉफिट। फ़िलहाल मैंने जो कोट किया है
उसमें some percentage of profit has been added in the total estimated cost of the work, and then I have gone into a particular contract. This is cost plus contract. This is basically used in the cases where the contracts, when we are trying to estimate the cost of the particular contract, it's not feasible, it's not it's not possible for us to exactly calculate the cost of the contract. For example, if I'm into if I'm trying to go into a contract of, let's say, building the bridge. अब ब्रिज बनाने के लिए जो मुझे मटेरियल चाहिए, आज उसके लिए मैं जब एस्टिमेशंस कर रही हूँ, हर मटेरियल, हर खर्चे को लेकर एक एस्टिमेटेड फोरकास्ट कर रही हूँ, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रही हूँ कि भाई अंदाज़ा मेरा इतना खर्चा होगा. तो व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग इज, व्हेन आई विल बी कोटिंग द प्राइस, उसमें 50 तरीके के खर्चे होंगे. कुछ खर्चे हो सकता है मेरे उतने ही रहें. मान लीजिए मैंने मशीन की बात की, मशीन आज 4 लाख रुपए में मुझे मिल जाएगी तो वो 4 की ही मिलेगी. मटीरियल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, इफ आई जस्ट टॉक ऑफ द, लेट्स से आयरन शीट्स मुझे उसमें चाहिए, आयरन रॉड्स मुझे चाहिए. आज आयरन का रेट कुछ और है मार्केट में, सीमेंट चाहिए और सारे मटेरियल चाहिए. आज जो मैं एस्टिमेशंस कर रही हूँ, आज मटेरियल किस रेट पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैं कॉस्ट शीट बना रही हूँ, एस्टिमेट कर रही हूँ, फोरकास्ट कर रही हूँ कि कितना बजट मेरा या कितना एक्सपेंसेस मेरे आएंगे बनाने में उस ब्रिज को. बट एक्चुअली आगे फ्यूचर में क्या होगा, नोबडी नोज. हो सकता है डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ जाए और मुझे कोई एक मटेरियल सस्ता मिल जाए, तो मेरी ओवरऑल अदर कॉस्ट बीइंग सेम, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, तो हो सकता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट में इनकर करूँ शायद वो एस्टिमेशन से कम हो, तो जाहिर बात है मेरा प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा. हो सकता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाए, आज जो मटेरियल मैं 4 लाख रुपए का खरीद पा रही हूँ, शायद वो एक्चुअली में प्रॉफिट जो फ्यूचर है, फ्यूचर में वो 4 की जगह 6 लाख का मिले मुझे, लेकिन मुझे लेना तो पड़ेगा ही. वो 2 लाख कहाँ एडजस्ट करूँगी, 2 लाख मुझे तो खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी हूँ. तो मैंने एक्चुअली क्या किया है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मेरे लिए कोई भी प्रोजेक्ट जब मैं शुरू कर रही हूँ तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ मैं कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं कर सकती फ्यूचर को. तो व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग इज़ कि आज प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की और उसमें कुछ हिस्सा प्रॉफिट का मैंने ऐड करके प्राइस कोट किया. अगर आज मुझे लग रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए में एक काम, एक कॉन्ट्रैक्ट करके दे सकती हूँ आज के हिसाब से, मगर फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, cost is unpredictable, you may find at cheaper rate, you may have to bear more expenses in future. तो मैंने उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा आज की तारीख के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड किया, और इंस्टेड ऑफ कोटिंग 1 करोड़ रुपीज़ मैंने उसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऐड कर दी. मैं सिर्फ उतना ही मार्जिन में मान के चल रही हूँ, हो सकता है या ये 1.25 करोड़ रुपए कर दिए कि नहीं ठीक है, अगर 1 करोड़ में आज के हिसाब से फ्यूचर में भी हो जाएगा, देन आई विल बी हैविंग 25 लाख एज माई प्रॉफिट, और एडिशनल जो भी मैं कोट करूँगी. दिस इज़ बेसिकली द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, because it's not possible every time that you can correctly forecast or estimate the exact cost in present scenario for the future time period, and the items of different expenses you will be incurring for the contract, they are basically the based on the future scenarios in the market. तो इसमें होता क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो इस चीज़ को ध्यान रखेगा और उसमें कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करके कोट दी प्राइस. नाउ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली यूज्ड इन, generally they are used in some kind of particular situations, and these situations are when the product or service is the new. तो आपने R&D तो की हुई है लेकिन आपके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, पिछले कोई ट्रेंड नहीं है उस प्रोडक्ट को या सर्विस को लेके कि उस ट्रेंड के बेसिस पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एस्टिमेट कर पाएँ. तो अब एक नया प्रोडक्ट है, आप सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एस्टिमेशन सही निकलेगा. हो सकता है आप उतना ही खर्चा कर पाओ, हो सकता है आपका खर्चा उससे ज़्यादा हो और हो सकता है उससे कम हो.
it can be any situation, because you don't have any historical trend or data, or you don't have any kind of information from the history or past, on the basis of which it would be easy for you to have a better forecast. क्योंकि फोरकास्ट आपकी प्रिजम्पशंस पे, आपके अजम्पशंस पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे है, और एक्यूरेसी 100% होना बहुत मुश्किल होता है. So when particularly you are talking of the launch of a new product or service, then you may find it impossible to estimate the proper cost. Then the product or service may be highly complex, and the cost cannot be predetermined properly. In case as I told you, in case you have inflationary situation, अब इन्फ्लेशन की वजह से वो कहाँ तक उसका प्राइस जाएगा, बूम अगर आ जाता है, उसकी डिमांड ऐसी हो जाती है, सप्लाई है नहीं, तो प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं, बिल्कुल चौगुने दाम हो जाएंगे, तो आपकी सारी कॉस्ट शीट बेकार हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. डिफ्लेशनरी आपके फेवर में जाएगी, इन्फ्लेशनरी आपके अगेंस्ट में जाएगी, और हो दोनों में से कुछ भी सकता है. तो डिफ्लेशनरी अगर है, डिफ्लेशन अगर आ रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं है, मगर इन्फ्लेशन में आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आपका बजट हिल जाएगा. Then you may have a frequent modification or alterations which may be required in the allotted work. मान लीजिए अगर गवर्नमेंट का या कोई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेट्स से आपको अपना घर बनवाना है 4 फ्लोर का, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आज एक रेट कोट कर लिया एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ में. अब जब वो काम शुरू किया, काम जब किया, तो कुछ काम आपने बताए थे, आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने करके दिए, मगर काम होने के बाद वो आपको अच्छा नहीं लगा. आपने कहा नहीं, इसको तोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब कोई और नया डिज़ाइन बनाओ, या कोई और नया डिज़ाइन मार्केट में कोई चीज़ का आपको मिल जाता है, तो आप कहते हो नहीं ये वाली चीज़ का काम कराना है. तो अब आपने काम करा के तुड़वा दिया, और फिर वो कराया, ऑल्ट्रेशंस करानी शुरू कर दी डिज़ाइंस में, तो वो काम होने के बावजूद भी मुझे तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू सेटिस्फाई यू एज कॉन्ट्रैक्टर. तो मैंने कॉस्ट तो मेरी इनकर होगी, तो उस सिचुएशन पे मैं क्या करूँगी, मेरा तो कॉस्ट शीट पूरी हिल जाएगी. तो इस तरह की अगर ऑल्ट्रेशंस छोटी मोटी अगर होंगी तो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आप ऑल्ट्रेशंस कराते चले जाओगे, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद मैं भी कहूँगी कि सर इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, ये मेरे बजट से बाहर जा रहा है. आपको मैंने 100 रुपये की चीज़ कही थी लगाने के लिए, आप तो 400 रुपये पसंद करके आ रहे हो, मैंने तो 100 रुपये के हिसाब से एस्टिमेट दिया था, अब आप 400 का अगर क्या करो, 300 रुपये का जो डिफरेंस है वो कौन देगा, इधर यू पे, अदरवाइज मैं तो 100 रुपये के हिसाब से काम मटीरियल लगा दूँगी. In case you have these kind of situations, alterations or modifications in the allotted work, then you may find it difficult, and then in that case you go for cost plus contracts, because in general, in just if I say, cost plus contracts are done when it is not possible for you as contractor to calculate the cost in advance accurately. And these kind of contracts are basically advantageous in some kind of situations, and the contractor is basically insured of a fixed percentage of profit. नुकसान का उसमें रिस्क कम होता है. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इन्फ्लेशन हो गया या आपने ऑल्ट्रेशंस किए, अब मैंने अगर उसमें बोला कि सर देखिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं आपकी किचन में जो मटेरियल यूज़ करूँगी दैट विल बी ऑफ, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टाइल्स, मैक्सिमम 100 रुपये वाली टाइल मैं लगाऊंगी, आप 100 रुपये तक की टाइल पसंद कर लो, वो मैं कोई भी लगा दूंगी. अब उसके एडिशनल अगर आप कोई और टाइल लगवाना चाहते हो, और मान लीजिए आपको टाइल पसंद आई 300 रुपये की, मैंने तो 100 की बात की थी, तो जो एडिशन है वो आपको ही पे करना पड़ेगा. तो वो आप दो तो 300 वाली लगवा लो, वरना 100 रुपये वाली में कोई भी पसंद कर लो, वो लग जाएगी. तो वो जो एडिशन है, दिस इज़ बेसिकली द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि इन दिस अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इफ आई एम गोइंग टू पुट टाइल्स इन द किचन, द रेट मैक्सिमम rate of the tile will be 100 rupees, and in case you want the tile of higher price to be there in the kitchen, then you have to pay addition cost. So this is basically, if the agreement or the contract between contractor and contractee is there, then it is the contract which is cost plus contract. It basically simplifies the work of the preparation of tenders and quotations, and in case of price fluctuations, then the contractor
may protect himself saying कि अगर सर रेट मार्केट में अगर इन्फ्लेशन का आ जाते हैं सिचुएशन और रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो आपने अपने आप को इन्फ्लेशनरी सिचुएशन से भी सेव कर लिया कि अगर रेट किसी वजह से बढ़ गए तो वो आपको पैसे कॉन्ट्रैक्ट ही दे रहा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट रह जाएगा और आपका जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का रिस्क आपके लिए हो सकता है वो ख़त्म हो जाता है। And it helps you in delaying the or in having the chances of errors in the estimation of cost, and the contractee can ensure himself about the cost of the contract because he is empowered to examine the books or documents or statements of the contractor। उसको आपको पूरी डिटेल देनी होती है और खुद भी वो कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टी के लिए भी होता है कि कॉन्ट्रैक्टी को भी लगता है कि हाँ ठीक है, कॉस्ट जेन्युइन उसने मुझे बताई है, बट apart from these advantages you have limitations of this kind of contract because the contractor will be deprived of the advantages which may be there in case you have favorable market prices। जैसे अगर मैंने inflationary situation का बोला तो inflationary situation के केस में तो contractor को फ़ायदा है, लेकिन डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, उसको उसका एडवांटेज हो सकता है ना मिले क्योंकि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब मैंने 100 रुपये का बोला, कॉस्ट मैंने 100 रुपीज़ की बोली लेकिन कॉस्ट प्लस था, लगाई से 50 रुपये वाली, तो वो जो 50 का डिफरेंस है वो उतना एडिशन उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। हिल कोट 50 रुपीज़ क्योंकि जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट टाइल की लग रही है वो 50 की लग रही है, मैक्सिमम मैंने 100 बोली थी, 50 वाली लगाई, तो ही हैज़ टू कोट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 50 के हिसाब से ही, हिज प्रॉफिट मार्जिन विल गो अवे, तो ही विल नॉट बी एबल टू हैव द एडवांटेज ऑफ द favorable market prices, and he has to suffer for his own efficiencies because the profit is usually based on the percentage of the cost which has been actually incurred by him, and the contractee has to pay for the inefficiency of the contractor because he has no incentives to reduce the cost। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसका फोकस जो है उसका फोकस काम करने पर होगा, विल नॉट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि भी जितना खर्चा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही दे रहा है, तो मैं चाहे मटेरियल वेस्ट हो या ना हो कितने का भी लगा दो, आई विल बी गेटिंग दैट मनी। So I'll not try to reduce the cost of raw material in case the wastage is going on। I may be liberal in the sense कि मेरा उस पर focus नहीं होगा तो my efficiency level in the proper you can say utilization of the resources may be low, क्योंकि I'm sure or I know that whatever amount has been spent by me for the contract is going to pay। तो वो कॉन्ट्रैक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसको नुकसान इस तरह से हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर सही से काम नहीं करेगा, थोड़ा लापरवाह हो जाएगा, एंड द प्राइस टू बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी इज एक्चुअली अननोन बिकॉज द वर्क इज इन प्रोग्रेस। टिल द टाइम द टोटल वर्क इज बीइंग डन you are not sure how much amount has to be paid। Now theoretical I hope is clear। Now coming to the question, the question says that the contract price of the contract which has been undertaken by SPA Limited on 1st of April was 12 lakh rupees। 12 lakh का contract price था। The contractor at the end of the year received 4,80,000 representing 80% of the amount of the work certified। इसका मतलब आपने contract price कितना था, contract price was 12 lakh rupees, वर्क सर्टिफाई कितना हो गया 80%, उसमें से आपको 4,80,000 रुपये मिल गए at the end of the year, and the different expenses you have incurred during the year are given to you। Material issued is 2,05,000, material at the end which is there in the hand of the contractor at the end of the year is 9,000 rupees। Then you have direct wages 2,80,000, direct expenses 42,000, plant installed at the site is 1,60,000, and overheads allocated to this contract is 20,500। Now as per the format what we are supposed to do is material issue जो हुआ, जो हमने परचेज किया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2,05,000, इट इज़ टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जो हम टू मटीरियल टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ओवरहेड्स, ये सब हम एक्सपेंसेस सारे
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा रहे हैं। तो मटेरियल इशू जो शुरू में हुआ 2,05,000, it will be shown on the debit side of the contract account to material 2,05,000 rupees. Material at the end of the year has to be shown on the credit side by material at the end 9,000 rupees. Then direct wages 2,80,000 डेबिट साइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 42,000 के भी वहीं आएंगे। प्लांट विच हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द साइड 1,60,000 रुपीज़, ये भी आपका डेबिट साइड के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के आ जाएगा। ओवरहेड्स एलोकेटेड टू all the indirect expenses you are incurring for this particular contract is 20,500 to be shown on the debit side of the contract account. I hope ये डेबिट और क्रेडिट साइड आप लोगों को क्लियर है। I think someone is trying to connect. Okay, I'll just show you the solution of this. Now you have another information in the question. Work finished but not yet certified at cost 16,750. आपने इतना काम कर दिया है लेकिन वो अभी सर्टिफाई नहीं हुआ है, एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वर्क विच हैज़ बीन finished by you, and it is supposed to be certified. Then you have to charge depreciation on the plant at a rate of 12.5%. You have to prepare the contract account. Now as you all can see on the screen the solution, we have prepared the contract account. As I told you, material 2,05,000 rupees, direct wages हमें दिए हुए थे 2,80,000 के, direct expenses 42,000, overheads 20,500, ये सब क्वेश्चन में दिए हुए थे। ये सब हमारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ गए। प्लांट हमने जो यूज़ किया था द कॉस्ट प्राइस वॉज 1,60,000, ये हमने दिखा दिया। डेप्रिसिएशन हमें बताया हुआ है कि वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 12.5%, तो इट विल बी 12.5% ऑफ 1,60,000 रुपीज़। और 1,60,000 रुपीज़ का जो 12.5% डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे, वो आप 1,60,000 में से माइनस करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द क्लोजिंग वैल्यू of the plant which is supposed to be shown on the credit side of the contract account. Now 12.5% of 1,60,000 comes out to be 20,000. Actually this is the amount of depreciation. तो जो हमारी at the end of this particular year book value आएगी plant की, that will be 1,60,000 minus amount of depreciation which is 20,000, that means 1,40,000. Now this 1,40,000 is to be shown on the credit side of the contract account as by plant at site 1,40,000 book value. I hope till now it's clear. Now on the credit side of the contract account we have to show by work in progress, where we have to show two figures. One is work certified, that will be at the selling price, or you can say cost price plus profit. वर्क सर्टिफाइड हमेशा है, मैंने आपको रूल्स में बताया था, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज रूल्स. वर्क सर्टिफाइड हैज़ टू बी शोन एट द प्रॉफिट फिगर एंड द वर्क अनसर्टिफाइड हैज़ टू बी ऑन द एट द कॉस्ट प्राइस, इट हैज़ टू बी शोन. तो वर्क अनसर्टिफाइड तो आपको कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ था 16,750 का, तो वो हमने अमाउंट वहाँ दिखा दिया 16,750. Now next step will be is to calculate the work certified. Now work certified के लिए what we have to do is the work certified जो हमारा था work certified was you have received. Okay, now the question says that you have received 4,80,000 rupees representing 80% of the amount of work certified. I'll just give me a minute. I'll share the Excel sheet
so that I can explain this. I hope the Excel sheet I have shared on the screen is visible to you. Now the question says that you have received 4,80,000 rupees. ये आपने कैश रिसीव किया है, और कैश हम कब रिसीव करते हैं? जब हमारा वर्क सर्टिफाई हो जाता है. The questions language says that you have received 4,80,000 rupees of cash, which represents 80% of the work certified. इसका मतलब मैं जो भी मेरा वर्क सर्टिफाइड था, जो कैश रिसीव किया है, वो मैंने 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का रिसीव किया है. नाउ इफ आई से वर्क सर्टिफाइड इज लेट्स से X, तो मेरा जो अमाउंट मैंने रिसीव किया है 4,80,000 रुपीज़, मैं इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगी? कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मीन्स 4,80,000 इज 80% ऑफ X. दिस विल बी द इक्वेशन, सिंपल. 80% ऑफ X का मतलब मैं जब X कैलकुलेट करूँगी तो X कैलकुलेट करूँगी तो कितना अमाउंट आएगा? इट विल बी 4,80,000 into 100 divided by 80. That comes out to be X is equals to 6 lakh. इसका क्या मतलब है? आई होप ये आपको सबको क्लियर है कि मैंने क्या किया. 4,80,000 रुपये आपने रिसीव किए थे. हम रिसीव कब करते हैं? जब वर्क सर्टिफाई हो जाता है. वी हैव टू सी कि हाउ मच इज़ द वर्क विच हैज़ बीन सर्टिफाइड एंड अकॉर्डिंगली हाउ मच मनी वी आर रिसीविंग. तो अभी हमें सिर्फ ये पता है कि जो भी वर्क सर्टिफाई हुआ है उसका 80% हुआ है. इसका मतलब 6 लाख रुपए का काम सर्टिफाई हो चुका है. सर्वेयर ने जो काम ऑडिट किया, सर्वे किया, 6 लाख रुपए का उसने काम ओके कर दिया. तो एक्चुअली आई एम एलिजिबल टू रिसीव 6 lakh rupees because this much work has been done and it has been certified. काम कितना किया टोटल वो उसमें अनसर्टिफाइड भी आएगा, लेकिन जो काम सर्टिफाई हो चुका है, जो मुझे रिसीव एक्चुअली करना है, मुझे 6 लाख रिसीव करने थे मगर मुझे मिले सिर्फ 4,80,000. तो X is the amount of the work which has been certified. Now what you have to do is, इसमें से अब आप क्या कर रहे हैं? जो the amount which has to be shown in now what okay, now again I have shared the PDF on the screen. Now the amount which we have calculated as 6 lakh rupees, this is the price of the total work which has been certified, irrespective of the amount, whatever amount has been received by us. We actually have to show the amount of the work which has been certified. मुझे मिले भले ही 4,80,000, मगर काम मेरा सर्टिफाई कितना हो चुका? 6 लाख रुपए का. तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड में दिखाएंगे वो हम 6 लाख रुपए दिखाएंगे, हम 4,80,000 नहीं दिखाएंगे. वी हैव टू शो द वर्क सर्टिफाइड इन टोटलिटी, दो or you can say whether it has been received or it has yet to be received. You have to show the total amount of the work which has been certified, which has been calculated as 6 lakh rupees by us. So on the credit side, on the contract of the contract account, we have to show by work in progress work certified as 6 lakh rupees, and the work uncertified was given to you at the cost price 16,750. The total work in progress value comes out to be 6,16,750. I hope till now it's clear. The last part of the question is you have to calculate the profit figure and we have to calculate
what amount has to be transferred to profit and loss account and what amount has to be transferred to the reserve account. अब आपके वो जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए थे, that first you have to calculate the notional profit. Notional profit is basically the total profit you will be earning right now. तो मैं अगर इसका अकाउंट को टोटल करूँ तो आई विल बी गेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज 58,250. दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द नोशनल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब हम पूरा फिनिश कर देंगे तब पता चलेगा. दिस इज नोशनल प्रॉफिट. अब हमें ये देखना है कि हमारा वर्क कितना सर्टिफाई हुआ है टोटल में. अब आप ये चीज़ देखिए, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट लिखा है दैट इज 6 लाख रुपीज़ विच वी हैव कैलकुलेटेड. टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था क्वेश्चन के हिसाब से 12 लाख आपको दिया हुआ था, तो इसका मतलब टोटल तो कॉन्ट्रैक्ट था 12 लाख रुपए का. 6 लाख रुपए मुझे मिल जाने चाहिए थे क्योंकि 6 लाख रुपए का मैं काम करा के सर्टिफाई करा चुकी हूँ. काम एक्स्ट्रा हो चुका है, अनसर्टिफाइड में भी है लेकिन सर्टिफाई हो चुका है 6 लाख का. इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना है 50%. अगर मैं परसेंटेज की कैटेगरी में देखूं कि इज इट द वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25% और इट्स इन द रेंज ऑफ 25 to 50%, और इफ इट इज़ मोर देन 50% उसके हिसाब से मेरा फॉर्मूला लगेगा. तो वर्क सर्टिफाइड इज 6 लाख रुपीज़, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 12 लाख रुपीज़. दैट मीन्स इट इज़ 50% of the contract price, the work certified. Then we have to take 2/3. लेस देन 25% था तो 1/3 लिया था. यहाँ पे अब हमें 2/3 लेना है. तो वर्क सर्टिफाइड इज 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. देन द प्रॉफिट अमाउंट, द नोशनल प्रॉफिट टोटल कितना है 58,250. आउट ऑफ दिस 58,250, 2/3 of the notional profit into into the cash received divided by work certified, which was the formula. You have to apply this formula. Now the figure comes out to be 31,067. कैसे आई? नोशनल प्रॉफिट 58,250 इंटू 2/3 उसका इंटू कैश रिसीव्ड. कैश हमने कितना रिसीव किया 4,80,000 का इन प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वर्क सर्टिफाइड. 4,80,000 मुझे मिले 6 लाख के काम करने के, तो हमने वो परसेंटेज यहाँ पे डाल दी. तो टोटल हम क्या कर रहे हैं कि 31,067 can be transferred in the profit and loss account out of 58,250, and the rest amount is to be transferred to the reserve account, which is 27,183. I hope this question is clear, and in case you have any doubt you can ask me. Rest question, one more question we'll do in our next class. Now if okay, शान यू हैव क्वेरी. मैम वो 58,000 आपने कहाँ से 58,250? बेटा आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था, आपकी डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे एंट्रीज थी. अब उसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, प्रॉफिट की फिगर आएगी. वो आप कैलकुलेट करके देखो. आपका टोटल जो प्रॉफिट का अमाउंट आएगा वो दिस 58,250 इज द टोटल बैलेंसिंग फिगर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. इस 58,250 को मुझे बाइफिकेट करना है अकॉर्डिंग टू द वर्क विच हैज़ बीन सर्टिफाइड एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. मेरे जो फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे रूल्स के हिसाब से 1/3, 25% से कम है तो 25 से 50 है तो 2/3, इस तरह के जो फॉर्मूले हमने पीछे रूल्स किए थे उसके हिसाब से जो ये बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट की, नोशनल प्रॉफिट है ये हमारा. एक्चुअली आई एम यूजिंग द टर्म नोशनल प्रॉफिट बिकॉज the actual profit will be calculated once the contract is over. इस notional profit में से कुछ हिस्सा according to the work which has been certified as compared to the contract price, some amount can be transferred to profit and loss account as the profit, and the remaining has to be taken as the reserve for next time period. तो ये 58,250 आपके इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है, उसको मैंने दो हिस्सों में बाइफिकेट किया है as per the situation. ठीक है. अगर अब मान लीजिए इसमें आई जस्ट टेक द अजम्पशन कि आपका जो वर्क सर्टिफाइड है इंस्टेड ऑफ 50% अगर वो कम होता, मान लीजिए आपका वो कैलकुलेट कर जो वर्क सर्टिफाइड है वो 25% से कम होता लेट्स से, तो आपका फॉर्मूला क्या लगता, नोशनल प्रॉफिट मतलब 58,250 इंटू 1/3, तो 2/3 की जगह 1/3 हो जाता.
इनटू कैश रिसीव्ड 4,80,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 6 लाख। तो वो जो अमाउंट आता वो 1/3 के हिसाब से आता, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता और रिमेनिंग जनरल रिजर्व में चला जाता, जो हम आगे के लिए कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का, अगर मैं ये बात समझाने के लिए अगर यूज़ करूँ टर्म्स, ये अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, मान लीजिए ये पहले साल का अकाउंट बना रही हूँ, तो पहले साल में मेरा प्रॉफिट होगा ही नहीं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर मान लीजिए उसमें 25% से कम काम है तो 1/3 ही सिर्फ मैं प्रॉफिट में दिखा सकती हूँ, बाकी रिजर्व है, आगे 2 साल में भी क्या होगा मुझे नहीं पता। तो दिस इज़ द सिचुएशन, यू हैव टू टेक केयर how much work has been done, how much work has been certified, and accordingly only you can estimate the profit you can which you can transfer to PL and account। जब तक कि वर्क सर्टिफाई नहीं होगा आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वर्क सर्टिफाई ना हो पैसे नहीं मिलेंगे तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द वर्क डन, वर्क सर्टिफाइड एंड द कैश विच हैज़ बीन रिसीव। क्योंकि जो हमने कैश रिसीव किया है उसमें हमारा प्रॉफिट का कुछ मार्जिन है, कितना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितना वर्क सर्टिफाई हो चुका है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। यस मैम। ओके मैम क्रेडिट साइड भी डेबिट साइड से ज्यादा हो सकता है ना? हाँ, नुकसान आ सकता है आपको, अगर आपके लिए उसमें नुकसान आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा थ्योरेटिकली अगर इनिशियल स्टेजेस में है प्रोजेक्ट, तो आपको हो सकता है कि आपको एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं, वर्क सर्टिफाई हुआ ही नहीं अभी, आपने काम तो किया है, काम आपने कर दिया, लेकिन अभी वर्क सर्टिफाई नहीं हुआ किसी वजह से। तो यू मे हैव अ सिचुएशन व्हेन you may have you don't have any profit। Excuse me, ma'am, how many units are there? I can't hear you properly beta। Ma'am, how many units are left in the syllabus? how many units बेटा, अभी यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी तो बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, because of the limited lectures you have only 15 lectures in total। I'm trying कि मैं जितना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, but practically or in reality if I just speak up then it is not possible to finish off the whole syllabus। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना मैक्सिमम करा सकूँ, चाहे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। Yes, यूनिट ma'am. वाइज तो नहीं, Thank मैं एक्चुअली अगर आप एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, आई एम नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इन द सेंस आई एम नॉट टीचिंग यू यूनिट वाइज। अगर मैं यूनिट वाइज पढ़ाने लगूंगी तो वो सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बाद वाले हैं वो करने मुश्किल हो जाएंगे। लाइक लेबर कॉस्टिंग था, लेबर कॉस्टिंग मैंने यूनिट सेकंड में से स्किप किया हुआ है। आई जस्ट डिस्कस द मटेरियल कॉस्टिंग विद यू। कॉस्ट शीट आपके लिए बाद वाले यूनिट्स में था, वो मैंने पहले करा दिया। कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग बाद वाले यूनिट्स में था, आई थिंक 3rd या 4th यूनिट है, वो मैंने पहले करा दिए। तो आई हैव स्किप्ड सम टॉपिक्स ऑफ सेकंड यूनिट ऑल्सो। आई एम नॉट फिनिशिंग यूनिट वाइज, I'm taking the chapters according to their importance। Okay? Okay, ma'am, no problem. Thank you. Okay, Pratham, you have some question? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon। Ma'am, actually, like when you find out like profit that is no emotional profit you have been saying, that is 58,250. Like we do, like there is a term work certified is like 50% of the contract price. So um we have to reduce the profits as per 2/3 on the cash basis. So why do we include like um, for like work certified or work uncertified? Because we do have to calculate the 2/3 profits of motional profits. I didn't understand that part, ma'am. As far as your question is concerned, basically Ma'am, double accounting you say. डबल अकाउंटिंग नहीं हो रही है। आप समझो, आपके पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। Hmm. वर्क सर्टिफाइड क्या है? जो आप वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में कॉमन चीज़ क्या है? उतना आप काम कर चुके हो। Hmm. अगर मैं इसमें बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिख रही हूँ
6,16,750 which includes work certified as well as uncertified. इसका मतलब 6,16,750 का काम मैं कर चुकी हूँ, चाहे वो सर्टिफाइड हुआ चाहे नहीं हुआ। ठीक है। Now when I'll be receiving the funds, I'll be receiving the contract price from the contractee on the basis of the work certified. आप अगर कॉन्ट्रैक्टी हो, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने 6,16,750 का आपका काम कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मैं तो सोचूंगी कि आप मुझे 6,16,750 के भी आप चाहे 10 लाख रुपए दे दो, मैं क्यों मना करूँगी। आप पैसे देने वाले हो तो आप ये कहोगे कि जब तक वर्क सर्टिफाई नहीं हो रहा मैं नहीं दूंगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वर्क सर्टिफाई होने के बाद पूरा दे दूंगी, कुछ मैं अटका के रखूंगी, जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं तब तक दूंगी। अब जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वर्क अनसर्टिफाइड जब तक है हम उसमें टेक्निकली प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम पता ही नहीं हो कितने पैसे देगा। वर्क जब सर्टिफाई हो रहा है तब हम उसमें ये दिखा देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम उसमें एक परसेंटेज प्रॉफिट का ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में दोनों ही अमाउंट में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मैं कमा ही रही हूँ ना। जब मुझे मिलेगा तो कुछ तो कमाऊंगी पैसे, चाहे वो सर्टिफाइड हुआ चाहे नहीं हुआ। वो जो अनसर्टिफाइड है 16,750, उसमें वो सर्टिफाई होते ही मुझे इतने पैसे मिलने ही हैं, उसमें मैं बाद में तो ऐड नहीं कर रही ना प्रॉफिट का फिगर, प्रॉफिट फिगर उसमें भी ऑलरेडी है। मैं 6 लाख की बात कर रही हूँ, मैं 16,750 की बात कर रही हूँ, दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं कमा रही हूँ। बस फर्क ये है कि जो मुझे पेमेंट मिलेगी, पेमेंट जो कर रहा है कॉन्ट्रैक्टी, वो अमाउंट 16,750 कंसिडर नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई इसको मेरा सर्वेयर पहले ओके करेगा आपने काम ठीक किया है कि नहीं, तभी मैं पैसे सोचूंगा देने की। आज आप जो क्लेम कर रहे हो आप 6 लाख के ऊपर क्लेम करो कि आपको मैं 6 लाख के हिसाब से दूँ, मगर मैं 6 भी नहीं दे रही, मैं तो उससे कम दे रही हूँ। मैंने 6 लाख के काम जो अप्रूव हुआ है उसमें भी 4,80,000 दिए आपको, सारा नहीं दिया है। व्हाट आई एम डूइंग इज द अमाउंट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं 1/3 2/3 आप छोड़ दो कि वो तो सिचुएशन के हिसाब से है। व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग इज कि जो मेरा प्रॉफिट है टोटल, वो इस क्वेश्चन में कितना आया 58,250, ये प्रॉफिट है मेरा अभी तक के काम के हिसाब से। ये 58,250 में से मैंने क्या किया है, मैंने 2 हिस्से बांटे। एक हिस्सा मैंने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हो गया मैंने प्रॉफिट दिखा दिया उसको एक्चुअली, और एक मैंने रिजर्व रखा आगे के लिए। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म होना था 3 साल में, ये पहले साल का है, पहले साल में मेरे अकाउंट के हिसाब से 58,250 मेरा प्रॉफिट आ रहा है। इसमें से मैंने 27,183 रुपये अगले सालों के रखे, क्योंकि हो सकता है तब मुझे नुकसान हो जाए, मैं वहाँ एडजस्ट कर दूँगी। 31,000 का लगभग मुझे पता है प्रॉफिट है, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट में इस साल का। ये मैंने कैसे किया है कि जो वर्क सर्टिफाई हो गया, नाउ द कॉन्ट्रैक्टरी इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ 6 लाख रुपीज़ टू मी। अब उसमें वो आनाकानी नहीं कर सकता, वो चाहे देगा बाद में। आज उसने मुझे 4,80,000 दिए हैं 6 लाख में से, मगर देने तो उसको 6 लाख के 6 लाख पड़ेंगे। अब मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन द परसेंटेज और द प्रोपोर्शन ऑफ द कैश विच आई एम रिसीविंग इन प्रोपोर्शन टू द वर्क विच हैज़ बीन सर्टिफाइड। मैं अनसर्टिफाइड तो कहीं कंसिडर ही नहीं कर रही। मेरा जो टोटल 58,250 का प्रॉफिट मैंने दिखाया है, उसमें से मैं जो काम सर्टिफाई करा चुकी हूँ और उसके बदले में जो मुझे पैसे मिले, 6 लाख का काम सर्टिफाइड था, 4,80,000 मुझे मिल गए हैं, तो कितना प्रोपोर्शन, कितना परसेंटेज आप कह सकते हो, मैंने कैलकुलेट किया है कि मेरा उसमें प्रॉफिट का है। उस 4,80,000 में जो मैंने रिसीव किए हैं 6 लाख में से, उसमें से 31,067 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट है, वो मैंने बाइफिकेट किया हुआ। अभी समझ में आया? यस मैम। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि 31,067 इज द प्रॉफिट यू हैव अर्नड on the work which has been certified worth 6 lakh rupees, and against that you have received 4,80,000। तो उस 4,80,000 में 31,067 का प्रॉफिट है बाकी कॉस्ट की। अभी 1,20,000 तो अभी आपको और रिसीव कर रहे हैं, उसमें भी कुछ कॉस्ट और प्रॉफिट का हिस्सा होगा। तो 31,067 रुपये जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो बेसिकली वो प्रोपोर्शन है एक तरीके से, जो 4,80,000 रुपये में आपका प्रॉफिट का हिस्सा है, वो आपने अलग निकालना है। क्लियर है बेटा अभी यस सब?
or still you have some doubt? No, ma'am, also, Okay, Diksha, you have also some query. Adesh and Diksha, you have also raised your hands. Please, in case you have query, you just unmute yourself and ask. Else will. Hello. Hanji Adesh. Good afternoon. Good afternoon. Tell us important chapter name. You want to know important chapters? Yeah. Important chapters, actually the whole syllabus is important. It has to be done by you because you'll be getting questions from every chapter. Yeah. तो कोई कुछ पर्टिकुलर टॉपिक बताना, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स बताना बहुत मुश्किल है, especially in case you are having your exams online. I would recommend, or I would personally suggest that you don't ask these questions कि कौन से chapters important है, because you have to cover the whole syllabus. In cost accounting, it's very it's a paper which can be scoring for you. You can score very well, and you Yeah. try, and you should actually, you don't try, you have to go through each and every chapter. Okay, ma'am. Still, there are some फिर भी important chapter. particularly अगर बात करें तो like chapters में भी like material costing में है, then you have the LIFO FIFO weighted average जो हम perpetual में हमने किया था. आदेश, please mute yourself. Yeah. Diksha, you also please once. Ma'am, I want to ask that if there is a condition of loss, there is no need to bifurcate as we do in the No, you profit just case. have to show the okay, you have to just show the loss Okay, in that thank case. you. Don't okay. रिजर्व में तो ट्रांसफर ही तब होगा ना जब प्रॉफिट होगा. अगर लॉस आ जाता है तो रिजर्व में आप दिखा ही नहीं सकते, बिकॉज रिजर्व में प्रॉफिट का ही हिस्सा जा सकता है बस. Yes, ma'am. ठीक है. Okay, Adesh, coming to your question, the first chapter is totally theoretical. It's important, you have to go through it. Material में we did the perpetual and periodic. In case if I just talk of the theoretical portion, then you may have the question where you may be asked the difference between periodic and perpetual inventory system, and in practical you may be asked to calculate the value the closing stock according to one or two methods, maybe LIFO, FIFO, simple average, weighted average, whatever case may be there in the paper. Apart from that, in labor cost, which we have not discussed yet in our class, then you may be having the question which is based on some idle time or labor turnover. वो थोड़े से ज़्यादा important हैं. Then you have the cost sheet, which is most important in cost accounting. You'll be getting one question out of that. Then you have contract costing. अब जो कॉस्ट शीट है और जो जॉब कॉस्टिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, उन दोनों में सिमिलैरिटी है. तो आई कैन से कि इन केस यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द कॉस्ट शीट विच यू हैव टू डू, देन जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट. फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट शीट बना रहे हैं, और जॉब कॉस्टिंग में सेम पैटर्न इज देयर, बट इट इज़ डन सेपरेटली फॉर ईच जॉब. सिर्फ ये डिफरेंस है. तो दीज टू चैप्टर्स आर सेम, एक्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट कि एक आप ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हो और एक आप जॉब वाइज बता रहे हो. Then the concept which we discussed today, contract costing, is very important. Generally इसका अभी ऑनलाइन के क्योंकि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैं इसमें कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि किस तरह के पेपर में आएगा, न्यूमेरिकल फुल प्लेज आएगा कि केस स्टडी टाइप आएगा. और जनरली अगर आप 10 ईयर्स भी देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन पक्का होता है. देन वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, एक रिकन्सिलिएशन का होता है. तो ये 4-5 चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं. यू कांट स्किप दीज चैप्टर्स. आउट ऑफ दिस, जॉब कॉस्टिंग वी हैव डिस्कस्ड, we cost sheet we have discussed, we have done contract costing also, and in case you need, when then we can try to have one more question in our class. Then
it would be clear to you. We'll do one more question in next class, and then we'll do some other topic, maybe transport costing. I'll finish. I'm just repeating that because of the shortage of time or the limited lectures you have, I'll try to finish, or I'll try to discuss the concepts as much as we can. Rest you have to do. थ्योरी भी मैं उतनी ही डिस्कस कर रही हूँ जितनी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. अदरवाइज कुछ थियोरिटिकल पोर्शंस ऐसे हैं जो मैं स्किप कर रही हूँ. यू कैन गो थ्रू योर बुक्स और स्टडी मटेरियल यू हैव. Okay, now it's 12:49 already. We are 20 minutes I have taken. We'll catch you in our next class on 27th. Till then, take care. See you all. Bye bye.